360 میں کیا آج کے طالبان ماضی کے طالبان سے مختلف ہیں اور کس حد تک؟ ویکسینز جان لیوا بیماریوں کے خلاف لاکھوں افراد کی زندگیاں بچانے میں کارگر، لیکن کرونا وائرس اس کامیابی کی راہ میں رکاوٹ کیوں؟ This is what we projected vaccination to look like before the COVID pandemic. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے تاریخی عباسیہ کیمپس کو سرکاری دفتر بنانے کی تجویز، طلبہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے وائس چانسلر نے انہیں کرٹسی کے اندر جو لاہور سے لوگ آتے تھے گیسٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے جگہ دی کہ آپ ساؤتھ میں جا کے کام کریں، وہ ہمارے ہی سر ہو گئے، انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ کیمپس دے دیں، ہم یہاں بنا دیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ قومی سلامتی کے لیے پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر معید یوسف نے اپنے امریکہ کے دورے کے بارے میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کی حکومتیں حقیقت پسندانہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ دورہ انہی کوششوں کا حصہ ہے۔ ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ اس پریس بریفنگ میں موجود تھی، مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں۔ مونا، معید یوسف نے کن موضوعات پر بات کی؟ جی نیلو، اس ہفتے معید یوسف کی ان کے امریکی ہم منصب جیک سلیون کے درمیان ایک دو طرفہ میٹنگ ہوئی جس میں قومی سلامتی، سرمایہ کاری، عالمی صحت، ماحولیات اور سیکیورٹی جیسے مسائل پر بات چیت ہوئی۔ 23 مئی کو جنیوا میں جیک سلیون اور معید یوسف کے درمیان پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ واشنگٹن میں ہونے والی اس ملاقات کا بڑا فوکس افغانستان اور خطے میں امن و استحکام کا قیام تھا۔ معید یوسف کے مطابق افغانستان کے مسئلے کا حل صرف افغانستان کے پاس ہے اور پاکستان اس سلسلے میں جو مدد کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ ان کے مطابق امریکہ کو اس وقت لیڈرشپ رول ادا کرنا ہوگا اور یہ کہ امریکہ اور پاکستان کا مقصد ایک ہے مگر طریقہ مختلف۔ خطے کے ممالک کی جانب سے افغانستان صورتحال سے نپٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی۔ ریجن اس بات پہ اگریڈ ہے کہ اکٹھے مل کے فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اس بات پہ بھی اگریمنٹ ہے کہ ملٹری ٹیک اوور کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب اس کی وجوہات فرق ہو سکتی ہیں، افغان حکومت کو تو آف کورس نہیں ہونا چاہیے، لیٹ سے کسی اور ملک کو ہو سکتا ہے کہ جی ملٹری ٹیک اوور نہیں بیکاز ڈیموکریسی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے لیے ملٹری ٹیک اوور ڈیموکریسی کی وجہ سے، ہیومن رائٹس کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ ایک سول وار پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا، وہ بھی موجود ہے۔ سو آل آف دس از اگریڈ، دا کوشچن از ہاؤ ڈو یو آپریشنلائز آل آف دس۔ بہت سی میٹنگز ہو رہی ہیں، دیکھیں میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے، ابھی ہم نے اس میٹنگ سے نکل کے ایک ایکشن اورینٹڈ چیز پہ جانا ہے جہاں تمام امپورٹنٹ طالبان قوتیں اگری کر لیں اکٹھے بیٹھ کے ایک ریئلسٹک سلوشن نکالنے کے لیے، اور وہ دیٹ از واٹ وی آر پشنگ فار۔ میرے ایک سوال کے جواب میں معید یوسف نے کہا کہ ہم تو سرے سے یہ چاہتے ہی نہیں کہ افغانستان میں کوئی کانفلکٹ ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یقین ہے کہ اگر سچے دل سے کوشش کی جائے تو ایک مثبت حل نکل سکتا ہے۔ معید کا کہنا تھا کہ آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے سیاسی مفاہمت۔ انہوں نے ایک بار پھر دہرایا کہ پاکستان مزید مہاجرین کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ مونا کاظم شاہ۔ افغانستان کے کئی اضلاع پر کنٹرول کے دعوے کے بعد اب افغان طالبان نے ملک کی صوبائی دارالحکومتوں کا رخ کر لیا ہے۔ قندھار، ہرات اور لشکرگاہ کے حصول کے لیے افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنوبی شہر لشکرگاہ میں پولیس ہیڈ کوارٹرز اور گورنر ہاؤس چاروں طرف سے طالبان کے گھیرے میں ہے۔ افغان فوج اس وقت صوبوں کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہے، جبکہ طالبان اس پر قبضے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ قندھار شہر پر اتوار کو راکٹ حملوں کے بعد سے پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے آج افغان پارلیمنٹ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ افغان جنگ اور امن میں کسی ایک کا انتخاب کریں۔ امریکی اور دیگر بین الاقوامی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد طالبان ایک مرتبہ پھر اقتدار پر قبضہ کرنے یا اس کا حصہ بننے کی کوشش میں ہیں۔ اگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سن کر یہ سن 2001 میں ان کی حکومت کے زوال کے بعد پہلا موقع ہوگا کہ وہ مضبوط عسکری اور سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئیں گے۔ ایسے میں کچھ حلقوں کی جانب سے اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آج کے طالبان جنگجو ماضی کے انتہا پسند اور سخت گیر نظریات رکھنے والے طالبان کے مقابلے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی ارم عباسی نے اس رپورٹ میں۔
सन 1996 में जब अफगानिस्तान में तालिबान को इख्तिदार मिला तो उन्होंने खवातीन की तालीम और घर के बाहर काम करने और महरम के बगैर घर से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी। बुर्का पहनना लाजमी करार दिया गया। पतंग उड़ाने, फुटबॉल खेलने, रक्स और मौसीकी सब पर पाबंदी लगा दी गई। इन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का नतीजा सख्त सजाएं थी। सरेआम कोड़े लगाना मामूल की बात थी। सहाफती सरगर्मियों पर मुख्तलिफ पाबंदियां थीं और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ सख्त पॉलिसीज अपनाई गईं। उस वक्त के तालिबान में वो मुजाहिदीन भी शामिल थे जिन्होंने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी। अमूमी तौर पर इस अस्करियत पसंद गिरोह को अमेरिका समेत बड़ी ताकतों और अफगान अवाम में भी मकबूलियत हासिल थी। लेकिन अमेरिका में 11 सितंबर को होने वाले दहशतगर्द हमलों के ताने बाने जब अफगानिस्तान से जुड़े तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान की हुकूमत का खात्मा कर दिया। बाज माहिरीन उस वक्त तालिबान की हुकूमत के जवाल की वजह उनके लीडर मुल्ला उमर को करार देते हैं। अगर हम तालिबान के ज़वाल की वजह देखें तो जिम्मेदारी एक शख्स मुल्ला उमर की हट धर्मी पर आयद होती है। तालिबान की तहरीक में असर और रसूख रखने वाली मजहबी उलमा कौंसिल की सिफारिश और मशवरों के बावजूद भी उन्होंने उसामा बिन लादेन को तहवील में देने से हत्ता के मुल्क से निकालने से भी इनकार कर दिया। जंग के आगाज के 3 साल के अंदर अंदर मुल्ला उमर की क़यादत में एक नई तालिबान लीडरशिप काउंसिल या क्वेटा शूरा कायम की गई। अमरीकी दिफाई और सिफारती ओहदेदारों को इस शूरा पर हमेशा ये एतराज रहा कि इसके जरिए अफगानिस्तान में तालिबान को मदद और रहनुमाई दी गई। तहम पाकिस्तान आज तक अपनी सरजमीन पर किसी ऐसी काउंसिल या उसके अरकान की मौजूदगी से सख्ती से इनकार करता आया है। दूसरी जानिब 2013 में मुल्ला उमर की मौत के बाद भी, जिसका एतराफ 2 साल बाद किया गया, तालिबान की अस्करी सलाहियत कम नहीं हुई। 20 साला जंग के बाद बिल आखिर फरवरी सन 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में एक सियासी मुआहिदा तय पाया, जिसके बाद से अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला जारी है। तालिबान ने इस इनखला का मुतालबा करते हुए ये यकीन दहानी कराई थी कि वो अपनी माजी की सख्त पॉलिसीज़ को तर्क कर देंगे, इंसानी हकूक़, ख़वातीन के हकूक़ और आज़ादियों का एहतराम करेंगे। अमेरिका की मदद से अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान भी अमन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू तो हुआ, लेकिन वो तातुल का शिकार है। अमन मुज़ाकरात के मरहले के आगाज़ से ही अफ़गानिस्तान में तमाम फ़िरक़ैन की जानिब से लड़ाई की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज तालिबान की क़यादत में ये जंगजू ग्रुप माजी से किस तरह मुख्तलिफ है। थॉमस रिटिंग कहते हैं कि कम से कम अब तालिबान ये तो जान चुके हैं कि वो तनहा मुल्क नहीं चला सकते। It's still up to debate whether वो ये वाजे कर चुके हैं कि वो समझते हैं कि अफगानिस्तान में दूसरी मजहबी और सियासी कुव्वतें भी हैं और सन 2001 के बाद से साबिक मुजाहिदीन और पार्टीज भी सियासी निज़ाम का हिस्सा बन रहे हैं, तो तालिबान भी अब इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में जल्द या बदेर तालिबान भी सियासी अमल में उनके साथ किसी सियासी मफाहमत की कोशिश करेंगे और उनके पास इस बारे में तजुर्बा भी ज़्यादा है कि दुनिया कैसे चलती है और अफगानिस्तान कैसे चलता है। लेकिन सिक्योरिटी अमूर के माहिर कामरान बुखारी समझते हैं कि तालिबान इक़्तिदार में अपना हक तो चाहते हैं, मगर उन पर इंसानी हुकूक की पासदारी से मुताल्लिक कोई दबाव नहीं है, क्योंकि वो ये जंग हारे नहीं। 1996 से 2001 में जंग के हालात थे, तो हमें उसके ऊपर मत जो है वो आप जज करें, तो हम औरतों को पढ़ने भी देंगे, नौकरियां भी करने देंगे, लेकिन उसका एक क्वालिफायर है कि भाई हम वो इस्लामी अक़दार के तहत वो सब कुछ वो करेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सारे गोल मोल बातें हैं इस चीज़ को छुपाने के लिए कि उनके अंदर नज़रियाती तौर पे किसी किस्म की कोई खातर ख्वाह तब्दीली नहीं आई, और वो इस वजह से है कि तालिबान एक सोशल मूवमेंट नहीं है, तालिबान एक इंसर्जेंट मूवमेंट है, यानी जंग के मैदान से उसका असर रसूख फैला है। अफगानिस्तान में इस वक्त खौफ व हिरास की सूरत हाल है और बाज़ माहिरीन को खदशा है कि बैनुल-अक़वामी अफवाज के इनखला के बाद अगर तालिबान अपनी माजी की पॉलिसियों पर कायम रहे तो गुज़िश्ता 20 सालों में हासिल की जाने वाली शहरी आज़ादियाँ कहीं छिन न जाएं। इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/voa urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता एहतिताम हफ्ता पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस 10 लाख से तजावुज़ कर गए हैं। इदारे के मुताबिक सूबे सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। सिंध हुकूमत ने केसेस में इजाफे के पेश नज़र 8 अगस्त तक सूबे में लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। और अब बात करेंगे पोलियो की। आज से पाकिस्तान के 68 अजला में पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज़ हो रहा है। हुकाम के मुताबिक 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 2.29 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके लिए लगभग 1,79,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाएंगे। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के गुज़िश्ता साल पोलियो फ्री होने के ऐलान के बाद अब सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे मुल्क बाकी रह गए हैं जहां पोलियो के केसेस पाए जाते हैं। पाकिस्तान में 2020 में पोलियो के कुल 84 केसेस रिपोर्ट किए गए। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा से एंटी पोलियो इमरजेंसी सेंटर के कोऑर्डिनेटर अब्दुल बासित बज़रिए स्काइप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब वॉइस ऑफ अमेरिका को टाइम देने का। हाई रिस्क इलाकों में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने और खुसूसन पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए इस वक्त क्या इक़दाम किए गए हैं? देखें, ये कैंपेन जो हमारी हो रही है ये मेजॉरिटी हमारे जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं केपी के उसमें हो रही है और इसके लिए कोई 27,000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं पुलिस की वो फील्ड में हैं और इसके साथ साथ और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं आर्मी और उसके साथ और इदारे वो भी फील्ड में हैं वर्कर की सिक्योरिटी को इंश्योर कराने के लिए। जी बासित साहब, पाकिस्तान में पोलियो मुहिम जो है ख़त्म ना होने की वजह वायरस की अफ़गानिस्तान से लोगों की मुसलसल आमद रही है। कोरोना की वबा के दौरान जब आमदोरफ्त कम हुई तो क्या इससे वायरस की ट्रांसमिशन में भी कमी आई है? डेफिनेटली, क्योंकि वायरस जो है ये ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी डायरेक्टली डिपेंड होती है वो ट्रैवल मूवमेंट के ऊपर। तो चूँकि लोगों की ट्रैवल कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुई है तो इसके कम होने में डेफिनेटली एक फैक्टर जो आउटसाइड फैक्टर हो सकता है वो लोगों का ट्रैवल न करना भी है बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। और इसके साथ साथ जो है हमारी बेसिकली जो सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन की जो कैंपेन हुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की कैंपेन हुई है जिसकी वजह से वायरल लोड में कमी हुई है। पहले ये कहा गया था कि कोरोना पाबंदियों के बायस पाकिस्तान में पोलियो के केसेस में भी कमी हुई है। क्या कोई हकीकी और ठोस पेशरफ्त मुमकिन हो सकी है? हकीकी और ठोस पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल से हमारे खैबर पख्तूनख्वा ने पिछले 1 साल से कोई केस वाइल्ड पोलियो का रिपोर्ट नहीं किया और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारे सूबों को मिला के 6 महीने हो गए हैं जिसमें वाइल्ड पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ और ये इट हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के इतने बड़े लंबे अरसे के लिए कोई वाइल्ड पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बासित साहब ये बताइए कि अभी तक जैसे हम देखते आ रहे हैं वालिदैन हमेशा इनकारी होते हैं, तो इसके लिए सोशल सतह पर अगर कम्युनिटीज़ में जाकर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि उनको आमादा किए जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन्स हैं उसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी लोग हैं और लोग नहीं चाहते कि वो वैक्सीनेशन ले, तो क्या इक़दाम इसके लिए किए जा रहे हैं? देखें, ये हर सूबे की अपनी डायनामिक्स होती हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कम्युनिकेशन की टेलर मेड स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जहाँ पर अगर शहरी आबादी है तो वहाँ पर उनके मुताबिक जो कि इंटरवेंशन पॉसिबल होती है वो करते हैं। जो ही आप जाते हैं साउथ की तरफ फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा ट्रेडिशनल है, ज़्यादा रूरल है, तो वहाँ पर फिर हुजरों में और मसाजिद के ज़रिए और उलमाए किराम के ज़रिए लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज का एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें वैक्सीन के अलावा हेल्थ हाइजीन, वॉश और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी दी जाती हैं माओं को और बच्चों को। और इसके साथ साथ हेल्थ कैंप्स भी हमने लगाए हैं ताकि लोगों को हम आमादा कर सकें टूवर्ड्स पोलियो वैक्सीनेशन। बासित साहब, थोड़ा सा अगर आप हमारे जो इस वक्त वालिदैन हैं वो देख रहे हैं उनको अगर आप बताना चाहें कि पोलियो की जो अक़साम है मुख्तसरन वो किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से वो इस बारे में एजुकेशन ले सकते हैं कि पोलियो की कितनी अक़साम हैं? देखिए जी, अभी दुनिया में जो 2 पाई जाती हैं उसमें एक वाइल्ड पोलियो वायरस है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में सिर्फ रह गया है और पूरी दुनिया से इसका सफाया हो गया है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि इसमें बच्चे के जिस्म का कोई भी हिस्सा मोस्टली उसकी जो टांगें हैं लोअर लिम्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, कभी एक हो जाती है या कभी दोनों हो जाती हैं और सिवियर केसेस में इसकी जो अपर बॉडी है अप टू द लेवल ऑफ चेस्ट वो भी मुतासर हो सकती है। और 1950s में तो इस तरह होता था जब केसेस की सिवियरिटी ज़्यादा होती थी तो लोगों का चेस्ट जो है
وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا تھا اور پیرالائز ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل پیش آتی تھی اور بچوں کی ڈیتھس بھی اس میں ہوتی تھی اور گرون اپ کی ڈیتھس بھی اس میں ہوتی ہیں. آج کل چونکہ وہ امیونٹی لیول لوگوں کا اتنا زیادہ کمزور نہیں ہے تو بچوں کی پیرالسز ہوتی ہیں. تو یہ تو وائلڈ پولیو وائرس ہے. اس کے ساتھ ایک دوسری ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویکسین ڈیرائیوڈ پولیو وائرس، اور دونوں کی کاز یہ ہے کہ بچوں کی امیونٹی جو ہے بیسیکلی وہ کم ہوتی ہے. جو ریکمینڈڈ ڈوزز ہیں بچوں کو جو لینی چاہیے ہر دفعہ جو پولیو کی کیمپین ہوتی ہے، وہ چونکہ بچوں نے نہیں لی ہوتی ہیں اور ساتھ میں بچوں کو انٹیرو وائرس اور الائڈ امیونٹی میں اس کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، باسط صاحب سے بچوں کو یہ وائرس ہو جاتا ہے. بہت شکریہ عبدالباسط صاحب وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا. گزشتہ 20 برس کے دوران دنیا بھر میں ویکسینز کے مختلف پروگرامز نے کئی جان لیوا بیماریوں کے خلاف لاکھوں افراد کی جانیں بچائی ہیں. تاہم کووڈ-19 وبا اس کامیابی کی راہ میں رکاوٹ کی وجہ کیسے بن رہی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ 2020 کے دوران افریقی ملک کانگو میں خسرے کی وبا کے بعد ویکسینیشن کی ہنگامی مہم کے مناظر ہیں. ایک تحقیق کے مطابق اس طرح کی کوششوں سے لاکھوں جانیں بچائی گئی ہیں. تحقیق کاروں نے گزشتہ 20 سالوں کے دوران 112 کم یا متوسط آمدنی والے ممالک میں 10 موذی بیماریوں کے خاتمے کے لیے ویکسینیشن پروگرامز کا جائزہ لیا تو انہیں پتہ چلا کہ ان ویکسینز نے 5 کروڑ افراد بالخصوص بچوں کی جانیں بچائیں. ان بیماریوں میں خسرت، تپ دق، HPV اور یرقان جیسی بیماریاں شامل ہیں. ویکسین امپیکٹ ماڈلنگ کنسورٹیم کی اس ریسرچ کی فنڈنگ بل گیٹس فاؤنڈیشن سمیت دیگر تنظیموں نے کی. If we continued with the vaccinations in our projections, اگر ہم اپنے منصوبوں کے مطابق ویکسینیشنز جاری رکھتے تو 2019 کے بعد سے مزید 4 کروڑ 70 لاکھ جانیں بچا لیتے. اس تحقیق سے ہم نے یہی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کووڈ کی وبا سے پہلے تعداد کیا ہوتی، اور ہم مستقبل کے لیے بھی ویکسینز کے طویل مدتی اثرات اور فوائد پر زور دینا چاہتے تھے. wanted to emphasize, these long-term effects, these long-term benefits of vaccination going into the future. ٹیکہ جات کے پروگرامز کے مخصوص بیماریوں کی روک تھام کے علاوہ مزید فوائد بھی ہیں. مثلا اگر لوگ ان امراض سے بیمار نہیں پڑ رہے جنہیں ویکسین سے روکا جا سکتا ہے تو صحت عامہ کے نظام پر بوجھ کم ہوگا، جس کی وجہ سے آپ ممکنہ طور پر دیگر بیماریوں کا علاج کر سکیں گے. تاہم طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وبا نے دیگر بیماریوں کے خلاف جاری ویکسینیشن پروگرامز کو متاثر کیا ہے. اس سال اپریل میں عالمی ادارہ صحت نے امیونائزیشن ایجنڈا 2030 نامی پروگرام شروع کیا تاکہ ٹیکوں کے پروگرامز کو دوبارہ فعال بنا کر زیادہ لوگوں تک ان کی رسائی ممکن بنائی جا سکے. اس کا مطلب ہوگا کہ ویکسینز تک بالکل رسائی نہ رکھنے والے یعنی 0 ڈوز بچوں کی تعداد آدھی ہو جائے گی، اور اس کی بدولت کم یا متوسط آمدن والے ممالک میں نئی یا کم استعمال کی جانے والی مزید 500 ویکسینز کو متعارف کرایا جا سکے گا. سائنسدانوں کے مطابق بڑی تعداد میں جانیں بچا پانا نہ صرف جدید سائنس کی حیرت انگیز ترقی کی دلیل ہے بلکہ کووڈ-19 کی وبا کے باوجود دیگر ویکسین پروگرامز کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور بھی ہے. ہینری رجول کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. پنجاب حکومت کی جانب سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مرکزی عباسیہ کیمپس کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں تبدیل کرنے کے بارے میں کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود تاریخی عباسیہ کیمپس کو سرکاری دفتر بنانے کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک محاذ کھل گیا ہے. طلبہ کو احتجاج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ تفصیل بہاولپور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں. 1925 میں قائم ہونے والے مدرسے سے جامعہ بننے تک کا کامیاب سفر طے کرنے والی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایشیا کی درجہ اول کی 500 یونیورسٹیوں میں شامل ہے. 42,000 سے زائد طلباء، 1800 اساتذہ، 123 شعبہ جات اولڈ کیمپس کے ساتھ ساتھ نیو کیمپس اور شہر کے نواح میں قائم دیگر سب کیمپسز میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ شعبہ قانون، انتظامی دفاتر اور ہاسٹلز مرکزی عباسیہ کیمپس میں قائم ہیں.
हमारा सारा मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो थ्रू आउट द सिटी वो यहीं से चलता है, और हमें विद इन सिटी कहीं पे भी जाना हो, हमें अपनी क्लासेस लेनी हो तो हर 15 मिनट के बाद या हाफ आवर के बाद जो है वो बसेस चल रही हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी के इस मरकज़ी अब्बासिया कैंपस को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तब्दील करने के मुबैना हुकूमती फ़ैसले पर तनकीद शुरू हुई, जिसका बाकायदा कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइज़र के मुताबिक हाल ही में डिप्टी कमिश्नर और दीगर सरकारी ओहदेदारान ने जामिया का सर्वे किया और इमारत का जायज़ा लिया। हमारे वाइस चांसलर ने उन्हें कर्टसी के अंदर जो लाहौर से लोग आते थे गेस्ट हाउस में रहने के लिए जगह दी कि आप साउथ पंजाब के लिए काम करें, वो हमारे ही सर हो गए। उन्होंने कहा आप हमें ये कैंपस दे दें, हम यहाँ बना लें। 2 साल से हमारे गेस्ट हाउस के रूम भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे और रेंट भी नहीं दे रहे। इस सिलसिले में वॉइस ऑफ अमेरिका ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से राब्ते की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जामिया इस्लामिया बहावलपुर की सिंडिकेट रुकन और बहावलपुर में तहरीक इंसाफ की डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सुमेरा मलिक का कहना है कि 2019 में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने के सरकारी ऐलान के बाद ये बेहतरीन दस्तयाब ऑप्शंस में शामिल ज़रूर था, लेकिन ये हतमी फ़ैसला नहीं था। 2021 में तो फिर डिस्कशन में लाया गया तो चंद रूम्स दे दें ताकि इसमें सेक्रेटरी और इसके जो 6 सेक्रेटरीज यहाँ पे हैं वो एक ही जगह पे यहाँ पे बैठ जाएं। पता है आजकल सोशल मीडिया में कोई चीज़ स्प्रेड करनी हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मसला नहीं है कि आप एक कंपेन चला लें। बंद कमरे में बात होना, ऑफिस में बात होना, डिस्कशन में लाना कोई गुनाह नहीं है। इस मामले पर तालिब इल्म मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो बाकी गवर्नर हाउसेज हैं, इस तरह की जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील किया जाएगा। तो जब वो एक यूनिवर्सिटी को एक जो है सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। इस पे तो फिर वही बात की जाए कि जी यू टर्न ले लिया, तो वो अपने ही बयान के, अपने ही विजन के खिलाफ जा रहे हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि जो हमारे सिटीजन हैं उनके लिए भी ये चीज़ थी कि हमारी अब्बासिया कैंपस हमारी एक तरह से मादरी इल्मी है। आप माओं को तो घर से नहीं निकालते होते ना। 60 एकड़ की ज़मीन पर बना ये कैंपस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए दस्तयाब वाहिद जगह नहीं। हम साउथ पंजाब के सेक्रेटेरिएट के मुखालिफ नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके अलावा आपको 30 एकड़ लैंड अलॉट हो चुकी है। कमिश्नर हाउस भी काफ़ी बड़ा है, डिप्टी कमिश्नर हाउस भी काफ़ी बड़ा है। कानून की निगाह में अगर देखें तो ये नोटिफिकेशन कर ही नहीं सकते। यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं किया जा सकता। तालिब इल्मों, असातिज़ा और वालिदैन के एहतजाज के बाद हुकूमत की जानिब से इस मामले पर फ़िलहाल खामोशी इख्तियार की गई है, लेकिन जामिया इंतज़ामिया का कहना है कि वो हर तरह की कानूनी चाराजोई के लिए तैयार हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, बहावलपुर। कबायली इलाकों में लड़कियों की तालीम एक गंभीर मसला रहा है। आम तासुर ये है कि मकामी लोग बच्चियों को तालीम देने के मुखालिफ हैं, लेकिन मुखालफत से हटकर एक मसला हुकूमत की तरफ से इन इलाकों में लड़कियों के लिए सरकारी तालीमी इदारों की कमी और इन पर अदम तवज्जो भी है। तफसीली रिपोर्ट हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे व्यू 360 में। इस वक्त देखते हैं इसकी एक झलक। ये एक अफसाना है, हकीकत इसमें कुछ नहीं है कि कबायली लड़कियों की तालीम के मुखालिफ है। अगर यहाँ की बच्चियों का तालीम से, ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेंगे तो ये टीचर भी बन सकती है और डॉक्टर भी बन सकती है। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए।